Hi guys, welcome to our channel. Thank you so much. We have now 20,000 subscribers. आज ही सुबह Merry Christmas to us. We were all so thrilled that mom made us a cake today. Yeah. मुझे तो बहुत weird लग रहा है 20,000 लोग देखते हैं हमें and actually they think that we're worth subscribing to. I don't know if they subscribe because of you guys, but they definitely subscribe because of me. Yeah, he's the MVP of the Totally. channel. Yeah, that's why that one video where he was the only host, it worked so well. He's got the highest number of views. Guys, मैं link दे रहा हूँ यहाँ पे. Please इसको देख लो अभी हाँ. Guys, today, if you see us, we are all color coordinated. The reason is that Abida gifted us these t-shirts. Yes. This is Elvis. He's one of my favorite artists of all time. So thank you for gifting me Elvis. I love evolution, love evolution. It's one of my favorite topics in the entire world to study. Darwin gave the theory of natural selection, father of evolution. So I also loved my t-shirt. So thank you. This is Van Gogh. He is one of the most famous painters of all time. He is most known for a lot of his paintings, but one eccentric episode he had where he cut off his own ear and then he admitted himself into a mental asylum where he would look out of that window and look at the stars, and that's when he created Starry Starry Nights, the famous painting which you must have seen. विधि आपके साथ भी ये होने वाला है शायद. Really smart people are generally go crazy. Oh no, man. तो फिर आपके साथ नहीं होगा. You know who's the crazy one of all of us, right? Yes. Can you just comment and tell us who's the crazy one? Definitely not me. Also, I was thinking हमारे 20k subscribers हो गए हैं, तो we should as a return gift to all of you, वो अपने इंग्लिश वाले नोट्स आज डाल ही देते हैं. मेरे इंग्लिश के नोट्स इस नोट्स में ना पूरी इंग्लिश है, मतलब पूरी 12th की इंग्लिश है इस नोट्स में, कुछ बाहर देखने की जरूरत नहीं है. तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा और उसको ओपन करने के लिए पासवर्ड आपको चाहिए होगा. वो पासवर्ड हम इस वीडियो के बीच में कहीं भी बोलेंगे, तो वीडियो पूरा देखना गाइस, बिकॉज़ ये अदरवाइज यू वोंट नो. पूरी यूट्यूबर वाली हरकतें कर रहे हैं. बहुत तेज हो रहा है. तो आपके बोर्ड्स में तो जैसे काफ़ी अच्छे मार्क्स आ गए थे. आई थिंक 97.8% आया था. फिजिक्स में 95 आए थे, इंग्लिश में 98 आए थे, पता नहीं कैसे आए थे. केमिस्ट्री में 97 और होम साइंस में 99. बायो में 100 आए थे. बायो में 100 आए थे. तो फिर नीट में क्या हुआ आपके साथ कि आपकी रैंक आई कुछ 12,499. Domestic violence can affect anyone. तो आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे कि आपने कैसे अपने नीट के साथ साथ बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर किया. तो गाइस ये वीडियो पूरा एंड तक देखना, बिकॉज दिस कैन बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं नीट के लिए. Yeah, this is not going to be a how to manage and ये this is my experiences, because I think experiences go a longer way than strategy, because strategy तो कोई भी अपने हिसाब से अपनी आप tailor made strategy follow करते हो, but experiences you learn from everyone's experiences. So if you ever notice, I always tend to say कि मेरा क्या experience था, how did I do it, not कि how should you do it. So let's begin. Yeah. So Vidhi, we know that during your board exams, a lot of your friends also said that they're not going to be studying so much for their board exams. Mm-hmm. So why did you study for board exams and what is the importance of board? So basically ना starting से जो भी अगर आप देखोगे ना बच्चे जो नीट वगैरह के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, they're like हाँ बोर्ड से फ़र्क नहीं पड़ता, हमें बोर्ड्स के मार्क्स से कुछ नहीं करना, बोर्ड्स के मार्क्स कहीं काम नहीं आएंगे और ये सब करके सब बोलते हैं, which is somewhat true, because अब जब मेरे मार्क्स आ गए बोर्ड्स के, वो थोड़े दिन की हाइप थी. देन एडमिशन्स की थोड़ा बहुत वो था कि DU वगैरह में अगर अप्लाई करना है तो इतने मार्क्स चाहिए, उसके अलावा वो मार्क्स ज़्यादा यूज़ नहीं आए कहीं पे. बट मेरे लिए जो इम्पोर्टेंस थी बोर्ड्स की वो ये थी कि नंबर 1, अगर एवरीथिंग फेल्स, मतलब अगर आप नीट में अच्छा नहीं स्कोर कर पाए, आप नीट देने ही नहीं जा पाए फॉर सम रीज़न, कुछ भी हो सकता है यार, लाइफ इज़ सो अनसर्टन, तो यू हैव दोज मार्क्स टू बैंक ऑन कि यू विल गेट एडमिशन एटलीस्ट समवेयर विद दोज बोर्ड मार्क्स. एंड इस साल तो कोविड की वजह से इतने सारे इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस ने भी बोर्ड्स के बेसिस पे बच्चों को लिया है. सो यू विल नेवर नो कब आपको बोर्ड्स के मार्क्स काम आ सकते हैं, बिकॉज इट्स द स्टैंडर्ड एग्जाम जो पूरी कंट्री के बच्चे देते हैं. दूसरी
दूसरा मैंने इसलिए किया था क्योंकि मुझे था थोड़ा बहुत एट द बैक ऑफ माई माइंड कि आई माइट गो अब्रॉड। बाहर तो सिर्फ यही मार्क्स देखते हैं बोर्ड्स के, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके नीट वगैरह में कितने आए हैं। तो इसलिए वो स्टैंडर्ड एग्ज़ाम्स हैं जो कंट्री के होते हैं, तो इसलिए बहुत ज़रूरी थे वो। कहीं भी इंडिया के बाहर अप्लाई करने के लिए यू नीड गुड बोर्ड्स मार्क्स, एंड सिंगापुर वगैरह में तो यू नीड 97 98, उससे नीचे तो वो मतलब देखते भी नहीं है बच्चों को, ठीक है। थर्ड मुझे इसलिए चाहिए था क्योंकि मुझे पता था कि बोर्ड्स नीट से पहले होते हैं एंड नीट की प्रिपरेशन होगी बोर्ड्स के साथ साथ। ये जो भी आपको बोलते हैं ना कि बोर्ड्स अलग है, बिल्कुल नीट अलग है, ये सब कुछ भी नहीं है। नीट पूरा एनसीईआरटी से आता है, बोर्ड्स पूरा एनसीईआरटी से आता है। और अगर आपने नीट के लिए एनसीईआरटी पढ़ी है ना तो आप बोर्ड्स मतलब निकाल ही लोगे, कोई इतनी प्रॉब्लम होती नहीं है। और मुझे पता था कि मेरा रिविजन होगा बोर्ड से। आपके बोर्ड्स में जो अच्छे मार्क्स आए, आई थिंक उससे एक ये फ़ायदा भी हुआ था कि आपको हिंदू में एडमिशन मिल गया था। अगर आपके पास बैकअप नहीं होगा, आप नीट काउंसलिंग में कोई रिस्क ले ही नहीं पाओगे, आप सिर्फ बहुत ही सेफ चॉइसेस भर पाओगे। बोर्ड्स में भी नहीं अच्छे आए होते और केवीपीवाई भी नहीं क्लियर हुआ था, तो फिर वो टाइम वुड हैव बीन सो मच मोर टफर। Not that we didn't face any tension and stressful times, but yeah, we always had this comfort that there's a backup. कमेंट्स में बहुत लोग पूछते हैं कि आपने कितने टाइप के एग्जाम्स दिए, कितने सारे एग्जाम्स होते हैं, प्लीज़ हमें भी बताना। और मैं तो कहूँगी अगर आप सिर्फ बोर्ड्स भी अच्छे से कर रहे हो ना, वही आपको बहुत अच्छा बैकअप ऑप्शन बन सकता है। So Vidhi, this is the time where you were also preparing for your pre-boards and you were also preparing for NEET. So why don't you share your experience on, how you were able to manage both? ये दिसंबर, जनवरी, फेब, ये 3 महीने ऐसे होते हैं जब आपकी नीट की प्रिपरेशन इतनी ज़्यादा इंटेंस चल रही होती है और बोर्ड्स की भी, मतलब बोर्ड्स सर पे होता है कि बोर्ड्स के लिए भी पढ़ना है क्योंकि प्री बोर्ड्स हैं, रिहर्सल पेपर हैं, ये सारे पेपर जो आपके स्कूल वाले लेते हैं वो तो होते ही हैं। तो मैंने क्या किया था कि जब भी मेरा कोई प्री बोर्ड या रिहर्सल पेपर या ऐसा कुछ, या फिर मुझे खुद का कोई प्रैक्टिस टेस्ट देना है बोर्ड के लिए, उससे पहले मैंने वो 5-6 चैप्टर्स जो भी मुझे लग रहा है डाउटफुल है या जो मुझे पहले से भी नीट के लिए भी रिवाइज करने थे, वो मैंने अच्छे से सब्जेक्टिवली रिवाइज किए, जो मुझे लग सकता है कि बोर्ड्स में भी आ सकता है। तो मैंने ना अपनी इन 3 महीनों में एनसीईआरटी ऐसे कर ली थी कि नीट 2019 में क्वेश्चन आया था, नीट 2018 में क्वेश्चन आया था, एंड बोर्ड्स में भी ये क्वेश्चन आया था या बोर्ड्स में एक क्वेश्चन आ सकता है। जैसे कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ एक ऐसा चैप्टर है जिसमें ना बहुत फालतू की थ्योरी है, ठीक है, जो आपको पॉइंट्स पढ़ के जाना होगा, जो नीट में कभी नहीं आएगा, बट वो मुझे पता था वो बोर्ड्स में आ सकता है और वो एक्चुअली में मेरे बोर्ड के पेपर में आया था। तो बेसिकली मैंने इन 3 महीने में एनसीईआरटी पढ़ना शुरू कर दी थी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कि ये तो बोर्ड्स में भी आ सकता है, तो दोनों तरीके से मार्क करो। और एक बार आप 2-3 बार वो पढ़ लोगे ना, और फिर आप जब रिवाइज भी कर रहे होगे तो आपको ये होगा, हाँ अरे ये तो बोर्ड्स के लिए मार्क किया है, ये तो नीट के लिए मार्क किया है, ऐसे करके। So it's like double revision. या डबल रिविजन, एंड लिटरली सेम चैप्टर है यार। जब तुम्हें सेम टेक्स्ट पढ़ना है तो बस एक थोड़ा सा एक तुम्हारा सब्जेक्टिव अप्रोच डेवलप करने के लिए Yeah, it's a smarter approach. So basically, you're killing 2 birds with 1 stone. Should I give more metaphors? एक पंथ दो काज। What? होता क्या है ना, हम जो भी नीट के लिए प्रिपेयर करते हैं उनकी बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव अप्रोच डेवलप हो जाती है कि ऑप्शंस होंगे, ऑप्शंस एलिमिनेट करके एक आंसर निकालना है, बट सब्जेक्टिव अप्रोच डेवलप करनी होती है हमें बोर्ड्स के लिए, और वही सबसे मुश्किल होती है। इसीलिए बच्चे भागते हैं बोर्ड से, नहीं बोर्ड्स के लिए नहीं पढ़ना, बोर्ड्स के लिए कैसे पढ़ेंगे, बोर्ड्स बहुत मुश्किल है और ये वो। 2 साल में तो मैं भूल ही गई थी कि लंबे आंसर्स कैसे लिखने। स्कूल के पेपर तो मज़े में दे के आ जाते थे, बट वैसे भूल गई थी कि अच्छी राइटिंग में लिखना होता है, थोड़ा प्रेजेंटेबल पॉइंट्स में लिखना होता है। लिखने की आदत ही नहीं थी, सब कुछ दिमाग में होता था और सीधा पेपर पे आंसर जाता था। तो एक वो चीज़ थी जो मैंने इन 3 महीने में डेवलप करी थी। एंड एनीवेज बोर्ड्स के बाद आपके पास 1-1.5 मंथ टाइप होता है पूरा फिर से नीट वाले फ्रेम ऑफ माइंड में आके कि बस सिर्फ नीट के लिए कर रहे हैं एंड सिर्फ ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं, उसी फ्रेम ऑफ माइंड में आने के लिए। तो आपके पास टाइम होता है 1-1.5 मंथ। तो ऐसा नहीं है कि आप बोर्ड के लिए थोड़ा पढ़ लोगे तो आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे अपने गोल से। What about फिजिक्स में डेरिवेशंस वगैरह होती हैं एंड ऑल, तो उसके लिए आपने कुछ अलग से किया था? फिजिक्स के लिए डेरिवेशंस एंड कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस होते हैं जो आप अगर 2-4 भी बोर्ड्स के पेपर देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैग्नेटिज्म एंड मैटर या मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, ऐसे जो चैप्टर्स होते हैं उनसे थोड़े अलग टाइप के हट के थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं जो आप ऑब्जेक्टिव में नहीं करते। तो वो सारे डेरिवेशंस एंड वो थोड़े स्टैंडर्ड क्वेश्चंस के लिए मैंने तो अमन दत्तरवाल भैया की वीडियो देखी थी, उनकी अन अकेडमी पे। दिस इज नॉट इन एनी वे स्पॉन्सर्ड। I will not bow to any sponsor.
मैंने उनकी वीडियोस देखी थी अन अकेडमी पे, उनकी एक पूरी सीरीज है ऑन बोर्ड्स, डेरिवेशंस एंड फॉर्मूलाज, और वो मैंने 3-4 दिन पहले देखी थी अपने बोर्ड से। लाइक वो जो प्रिपरेटरी लीव होती है ना फिजिक्स के पेपर के लिए जो मिली थी, मैंने तो उसी में देखी थी, क्योंकि मुझे पहले से ही पता था कि ये डेरिवेशंस वगैरह आनी है, क्योंकि मैंने प्री बोर्ड्स वगैरह के लिए पढ़ रखा था। बट वो आप जाके देख सकते हो, उन्होंने प्रॉपर डेरिवेशन बताई है कि ऐसे लिखना है, ऐसे लिखना है, ये डायग्राम बना देना तो इतने मार्क्स मिल जाएंगे, अगर तुम्हें ये याद नहीं रहा तो ऐसे लिख देना। तो वो सारा मुझे ना एक छप गया था दिमाग में। अगर तुम वो बहुत अच्छे से अमन ददराल भैया की वीडियोस देख लोगे ना, वो बोर्ड्स वाला सीरीज फिजिक्स की, तो तुम्हारा मक्खन हो जाएगा। मतलब लिटरली जो उन्होंने क्वेश्चंस 1-2 करवाए वो तो लिटरली सीधा सीधा आ ही गए बोर्ड्स में। एनी टिप्स फॉर केमिस्ट्री एंड बायो? या सो केमिस्ट्री एंड बायो तो देखो सभी को पता है कि नीट में भी एनसीईआरटी से आती है एंड बोर्ड्स में भी एनसीईआरटी से आती है। अगर हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोर्ड्स के लिए पढ़ ली, इनऑर्गेनिक बोर्ड्स के लिए पढ़ ली, तो फिर तो नीट तो मतलब कुछ भी नहीं है उसके सामने। देखो मेरे मार्क्स ना सिली मिस्टेक्स में कटे हैं नीट में, लेकिन मुझे अभी भी फ़ायदा, मैं यही बोलूँगी कि मुझे बोर्ड्स के लिए पढ़ने से इतना फ़ायदा हुआ है ना। मतलब जो एनसीईआरटी के ऐसी लाइंस ना जो मुझे लगता था यार ये तो कभी नहीं आएंगी नीट में, लेकिन ये बोर्ड्स में आ सकती हैं क्योंकि थोड़ा थियोरेटिकल पार्ट है तो आ सकता है, वो लिटरली नीट में उससे क्वेश्चन आया है। मेरे AIATS में क्वेश्चन आ जाते थे जो मुझे याद आ रहे हैं, ये तो बोर्ड्स के लिए पढ़ा था मैंने। फॉर एग्जाम्पल मुझे याद है मेरे बोर्ड्स के पेपर में एक क्वेश्चन आया था स्ट्रैटेजीज फॉर एनहांसमेंट वाले चैप्टर से, कि एपीकल्चर जो यूज़ होता है, लाइक हनी बीज जो यूज़ होती हैं, एग्जाम्पल दो कि कौन से क्रॉप्स पे यूज़ हो सकती हैं। एंड वो ना एक एनसीईआरटी की लिटरली एक इतने बड़े पैराग्राफ की छोटी सी लाइन है, उसमें वो 2 प्लांट्स लिखे हुए हैं, एप्पल है शायद और पेयर है, मुझे याद नहीं ठीक से। मुझे इतनी हंसी आ रही थी क्योंकि लाइक जनरली जो सिर्फ बोर्ड्स के लिए पढ़ते हैं उन्होंने ये लिटरली पढ़ा ही नहीं होगा कभी कि वो एक लाइन में वो 2 क्रॉस भी दिए हुए हैं। बट हम नीट वाले बच्चे, हमने तो एनसीईआरटी चाटी होती है बिकॉज ऑफ नीट, तो हमें वो 2 तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट्स होते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि यार ये अगर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन दे रखी है तो वो तो पक्का ही हमसे पेपर्स वगैरह में पूछते हैं। तो इसीलिए बेसिकली बोर्ड्स में तुम्हारी एज होगी एक, क्योंकि तुम्हें वो सारी चीज़ें पता होंगी जो नॉर्मल बच्चों को नहीं पता होंगी, क्योंकि उन्होंने बस थ्योरी पढ़ ली। हमको वो इन बिटवीन द लाइंस वाली चीज़ें पता होती हैं जो जनरली लोग मिस कर देते हैं। एंड अगर तुम बोर्ड्स के लिए पढ़ रहे हो तो नीट का रिविजन तो हो ही रहा है। So Vidhi, I'm just going off topic, but I've heard a lot of jokes of how everything is exceptional in organic chemistry. इनऑर्गेनिक टंग स्लिप हो जाती है हमारी। यार ये ना बहुत इनफेमस है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर एक्सेप्शंस, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। मतलब एक्सेप्शंस जो होती हैं वो भी ना उनके पीछे थोड़ा बहुत लॉजिक होता है। लाइक हमारे टीचर्स तो हमें लॉजिक के साथ ही समझाते थे कि एक्सेप्शन इसलिए क्योंकि इस एलिमेंट का साइज छोटा है, या कभी कभी बोलते थे चलो रट लो, याद कर लो। बट इतना ज़्यादा जो हाइप्ड अप है कि ये एक्सेप्शंस होती हैं, ये होती हैं, इतना ज़्यादा कुछ नहीं होता। अगर तुम लॉजिक लगाओगे तो तुम्हें थोड़ी बहुत वो एक्सेप्शन भी समझ में आ जाएंगी। All the tips you've given so far were for the science subjects. What about the extra subjects that people have, like home science and English? मैं वेरी ऑनेस्टली बताऊँ तो मेरे इंग्लिश में 10th में भी थोड़े बहुत मार्क्स आ गए थे, लाइक 97 ही आए थे। तो मुझे ये था कि मैं इंग्लिश कर लूँगी, तो मुझे थोड़ा बहुत ये कॉन्फिडेंट था इंग्लिश में आ जाते हैं मार्क्स। इसी तरीके से मैंने कई लोगों को इंग्लिश सिखाई है। तो इंग्लिश की क्लासेस तो स्कूल में तो मैंने बंक ही करी है, या फिर मतलब सभी को पता है कि कैसा होता है। थोड़ा बहुत ऑब्वियसली प्री बोर्ड की वजह से आइडिया तो था ही कि ऐसे चैप्टर्स हैं इसमें, ये है। बट वो मैंने जब नोट्स बना लिए ना एक बार, तो वो मैंने प्री बोर्ड्स के टाइम नोट्स बना लिए थे, ठीक है। तो उसके बाद फिर मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि जब मैं बना रही थी मैं वो नोट्स, तो मैंने तो पूरे वो अपनी कक्षा पे पूरे वीडियोज़ देखी थी, सब कुछ किया था, एंड देन एक्सप्लेनेशन देखी थी, देन मैंने अपने बुक में भी मार्क किया था। बेसिकली मेरे साथ ये है, आई गेस सभी के साथ ऐसा होता होगा, अगर एक बार बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ लो उसके बाद तुम नहीं भूलते, स्पेशली लिख के पढ़ लो तो अगर तुम अंडरलाइन कर रहे हो, नोट्स बना रहे हो, सब कर रहे हो, तो तुम नहीं भूलोगे उसके बाद। तो मुझे प्री बोर्ड्स के टाइम मुझे लगे होंगे कुछ 3 से 4 दिन पूरा इंग्लिश लिटरेचर का सिलेबस ख़त्म करने में, और बोर्ड्स के टाइम भी मैंने शायद 4-5 दिन पढ़ा है इंग्लिश का। मामी ने मेरे पेपर्स चेक किए थे, मैंने 3 या 4 मॉक इंग्लिश के पेपर्स दिए थे। Yeah, I would highly recommend you take these mock tests, because that ways you know how much you will score. Like you will know how much marks are allotted to what. Like it was an experience for me also. Exactly. Generally like मैं जब बताती हूँ ना अपने फ्रेंड्स वगैरह को कि मैंने मॉक पेपर दिए थे इंग्लिश के, मेरे ऊपर इतना हंसते हैं वो कि भाई इंग्लिश का मॉक कौन देता है, इससे अच्छा तो नीट का पढ़ लेती है ना। तो मैंने कहा नहीं यार, मतलब मुझे ना मैं अंडर कॉन्फिडेंट हो गई थी उस टाइम, तो मुझे था कि नहीं, मुझे एटलीस्ट एक आइडिया हो ना कि वेयर डज माई प्रिपरेशन स्टैंड। और ना मैं क्या करती थी,
इंस्टेड ऑफ स्टडिंग पूरे 5 दिन फॉर बोर्ड, जैसे कि मेरे कोचिंग में बच्चे क्या करते थे, जैसे कि मान लो उनका प्री बोर्ड है कुछ है तो वो छुट्टी ले लेते थे कोचिंग से कि नहीं हम आज नहीं आएंगे आकाश क्योंकि हमें बोर्ड्स के लिए पढ़ना है या जो भी है। मैं बहुत शौक होती थी वो सुन के। आप एक ही चीज मत पढ़ो, आप सब कुछ डिस्ट्रीब्यूट करके पढ़ोगे ना तो यू वोंट हैव टू मिस आउट ऑन एनीथिंग। तो जैसे मैं बता रही हूँ कि मैं नीट के लिए ही पढ़ती थी बट वो बोर्ड्स का साथ साथ कर लेती थी, तो मैंने आज तक अपने बोर्ड्स से पहले कोई क्लास नहीं मिस करी है आकाश की। लाइक मैंने टोटल में आकाश से 12th and 11th मिला के 4 या 5 छुट्टियाँ ली होंगी। We were planning to go to Goa and she had an AIATS that day, so we cancelled her ticket and booked her ticket for the next day just so that she doesn't miss her exam. नीट हमेशा होना ही चाहिए, ये नहीं कि अच्छा तुम अब ये बोल दिया मैंने कि बोर्ड्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है तो बस छोड़ ही दो नीट, ऐसा कुछ हमेशा साथ में करो। मेरी हमेशा टॉप प्रायोरिटी हमेशा नीट ही थी। मैं बोर्ड से 2 दिन पहले भी आकाश के पेपर दिया है, बोर्ड्स के बीच में भी जो पेपर होते थे आकाश के मैंने सारे दिए। In fact, she even had surgery in between. इस टाइम पे भी कोई क्लास नहीं मिस की थी। आई थिंक एक क्लास मिस की थी जिस दिन सर्जरी थी, दैट्स इट। फिर सर ने बोला देखो बेटा ये ऐसे क्वेश्चन है कि जो पूछता है ना सिर्फ उसी को पता होता है। तो फिर हमने कहा क्या है सर, सबने पेन उठा लेना है, मैंने कहा अच्छे से नोट कर लेना है इसको स्टार बना के। बच्चे वही होता है ना, ओके अब हमें पढ़ना है बोर्ड्स के लिए, बाय बाय नीट, विल सी यू लेटर। तो तुम फिर तो पक्का ही भूल जाओगे अगर तुम 1-2 महीना ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस ही नहीं करोगे तो तुम पक्का ही भूल जाओगे। तो मैं आकाश तो जाती ही थी एंड लाइक सब मतलब ऐसा हो गया था बोर्ड से 2-4 दिन पहले तक तो कि क्लास में सिर्फ मैं और 2-3 और बच्चे आते थे, बाकी सब छुट्टी पे होते थे क्योंकि बोर्ड्स के लिए पढ़ना है। अरे भाई बोर्ड्स के लिए तुम्हें तो पता ही था 2 महीने से कि अभी बोर्ड जा रहे हैं तो पहले से पढ़ के रखना चाहिए था। डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर टाइम, जैसे जो भी मैं अभी बता रही हूँ ना, जैसे होम साइंस एंड इंग्लिश एंड ऑल भी ये भी डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर टाइम। तुम्हें 15 दिन 20 दिन पहले से ही पता है कि तुम्हारा इस दिन पेपर है और इस दिन तुम्हारा AIATS भी है या इस दिन तुम्हारी क्लास भी है, तो 15 दिन का डिसाइड कर लो ना कि 1-2 चैप्टर इस दिन, 1-2 चैप्टर इस दिन, 1-2 चैप्टर इस दिन। तो मैं वो 5 दिन भी ऐसा नहीं होता था कि इंग्लिश के लिए अगर मैंने प्रिपेयरिटी लीव जो बोर्ड्स की भी है उसमें 5 दिन है तो 5 दिन इंग्लिश ही पढ़ रहे हो या 5 दिन सिर्फ होम साइंस पढ़ रहे हो या फिजिक्स पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं। 5 दिन थोड़ा थोड़ा फिजिक्स, थोड़ा थोड़ा इंग्लिश भी पढ़ लिया उसमें, उसी के बीच में थोड़ा अपना नीट का भी पढ़ लिया। टू समराइज द होल थिंग, मैंने जनवरी से थोड़ा सीरियसली बोर्ड्स के लिए पढ़ना शुरू किया, एज इन की NCERT वगैरह में मार्क एंड ऑल कर देती थी मैं। एंड बोर्ड्स की प्रिपरेटरी लीव्स में थोड़ा डेरिवेशंस वगैरह देख लिए, जो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं, अमन दत्तरवाल भैया की वीडियोस या कोई भी जो बोर्ड सेंट्रिक अपनी कक्षा की वीडियोस, ये सारे वीडियोस देख ली 3-4 दिन पहले थोड़ा थोड़ा, ताकि थोड़ा आइडिया लग जाए हाँ ओके अब तो बिल्कुल ऐसे ही लिखना है, ऐसे ही करना है, यही क्वेश्चन आ सकते हैं एंड ऑल। प्रिपरेटरी लीव्स वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं बट उसमें भी मैंने नीट का तो पढ़ा ही है। थोड़ा अगर आप अर्ली शुरू कर दो अपने प्री बोर्ड वगैरह को थोड़ा सीरियसली ले लो और अभी से ही शुरू कर दो तो आप यू विल बी लाइक वेरी कंफर्टेबल मैनेजिंग बोर्ड्स एंड नीट बोथ। Okay, so that's it for this video, guys. Thank you so much for being part of Yeah. our journey so far. If you haven't subscribed to us yet, please subscribe today. Guys, नया साल शुरू हो जाएगा बट मामा सब्सक्राइबर्स की भीख जरूर मांगते हैं। And guys, we're all going to be growing together. I know Vidhi is mostly the focus of this channel, but we try and put in a few things so that you don't just focus on your studies. You have a little bit of fun as well, and you get to learn a little bit about maybe art or culture or or other things. Yeah. So it helps us also, and we hope it helps you too. Okay, guys, so I think we'll see you in the next one. Bye bye.